Hello guys, welcome once again. And now we are going to start a series in that we are going to discuss NEET Physics PYQs. Most probably daily I will upload a video in that we will discuss at least 10 years PYQ of physics chapter wise. Okay, so today we are going to start from the chapter Motion in One Dimension. Okay, so we are going to start from NEET 2024. So in NEET 2024, one question was asked: the velocity vt graph of a body performing motion is given, and we have to find out which one is the correct option for the acceleration time graph. Okay, so in that, if we will just observe the graph, this one, then from this part to this part, slope of the graph is constant. Slope of the graph is constant means vt का slope होता है acceleration is constant and slope is positive. That means from first part we'll divide in three parts. So from first part, second part, and part three. Okay, in first part, acceleration is constant and positive. Second वाले में acceleration, the slope is zero because it is parallel to d-axis. So acceleration is zero. So second वाले में acceleration is zero. चलो थर्ड वाले में देखते हैं. थर्ड पार्ट में जो है वो है एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट बट इट इज नेगेटिव. सो इन थर्ड पार्ट वी कैन सी एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट बट नेगेटिव. अब चलिए देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं वन बाय वन. देखो फर्स्ट वाले में उसने बोला एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स फर्स्ट इज दैट मीन्स first one is wrong, this one is not valid. First is not valid, that means first option is wrong. Second one, once again, slope is increasing. So this one is also not valid. Third one, चलो थर्ड वन देखते हैं. थर्ड वन वाले में होता है फर्स्ट पार्ट ये रहा, और फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट. ठीक है, सो पार्ट वन इज वैलिड. सेकंड पार्ट इज दिस. सो सेकंड वाले में एक्सेलेरेशन इज जीरो, सेकंड पार्ट इज वैलिड. थर्ड वाले में एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, so third part is also valid. That means we'll have third option, that is the correct answer. Okay, for this one we will check fourth one. Then fourth one, acceleration is first is negative, that means this is also not valid. So this one and this one not valid, and option C is the correct answer. Okay, ठीक. So we are going to move for a next question. So in NEET 2023, one question was asked, very simple question. Position function is given. So function is given r. R is the function of t, that is given 4t I cap plus 2 t square j cap plus 5 k cap. देखो पोजीशन इज गिवन एंड उन्होंने पूछा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी मींस, देखो सिंपल सा फंडा याद रखना. पोजीशन गिवन है तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन, और अगर एक्सेलेरेशन गिवन है वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलेरेशन तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन. ठीक है, this one you find saying this one xt ग्राफ गिवन है तो वेलोसिटी स्लोप होगा, और vt ग्राफ गिवन है तो एक्सेलेरेशन स्लोप होगा. ठीक, अगर at ग्राफ गिवन है तो एरिया वेलोसिटी होगा, एरिया मीन्स इंटीग्रेशन वेलोसिटी होगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक, चलो देखते हैं. अब मैंने बोला x that position graph is given, so we are going to find out the differentiation of given graph with respect to time, that is velocity only. तो इसका डिफरेंस 4 का 4 is 4 only, t का 1 होता है, और I cap as it is प्लस 2 is 2, t स्क्वायर का होता है 2t, और j cap is j cap. यहाँ देखो t का फंक्शन नहीं है तो
5 को हो जाएगा 0, सो दिस वन इज 0। तो मेरा आंसर आ गया 4 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप। उसने पूछा है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, गिवन है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछा है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो। सो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर टी का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ तो टी है नहीं, तो टी डट 4 आई कैप प्लस यहाँ टी है, तो टी इज इक्वल टू 1, सो 4 इंटू 1 4, तो ये 4 जी कैप। ये हो गया मेरा वेलोसिटी का फंक्शन। और वेलोसिटी का फंक्शन मीन्स दैट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। अब उसने पूछा मेरे से कि मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड मीन्स वी वेक्टर का मॉड, दैट मीन्स रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 और रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब उसने डायरेक्शन पूछा, तो tan अल्फा डायरेक्शन इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। देखो वी वाई कितना हो गया, वी वाई मेरा हो गया 4, तो यहाँ 4 वैल्यू पुट कर दो, और वी एक्स कितना हो गया अगेन 4, तो यहाँ 4 पुट कर दो, तो कितना हो गया 1, 1 मीन्स tan अल्फा इज 1, that means alpha is equal to 45 डिग्री। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एंड 45 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो थर्ड देखते हैं। A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v, its average speed। तो चलो एक केस लेते हैं। मैंने बोला a vehicle is traveling from A to B such that half midpoint is C। ठीक, मिड पॉइंट है सी, तो ये वाला डिस्टेंस चलो मान लिया d/2, और ये वाला डिस्टेंस मान लिया d/2, हाफ एंड हाफ डिस्टेंस। ठीक है, अब उसने बोला है कि फर्स्ट वाले में स्पीड है उसका v एंड सेकंड वाले में स्पीड है 2v। तो मैंने कंसीडर किया कि फर्स्ट वाले में उसका टाइम लिया उसने t1 और टाइम लिया t2। ओके, तो मेरे को पता है बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो फर्स्ट वाले केस में टी वन मेरा हो जाएगा डिस्टेंस कितना है d/2 अपॉन स्पीड v, तो आ गया मेरा d अपॉन 2v। और सिमिलरली अगर मैं t2 लिखूं तो t2 हो जाएगा मेरा d/2 अपॉन 2v, हाँ स्पीड 2v, सो 2v ये कितना आ गया d अपॉन 4, d अपॉन 4v, 4v। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू नेट डिस्टेंस अपॉन नेट टाइम। तो नेट डिस्टेंस कितना हो गया, नेट डिस्टेंस अपना हो गया d, और नेट टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, और यहाँ पुट कर दो डी बोले तो d ओनली, और t1 कितना है d अपॉन 2v, और t2 कितना है d अपॉन 4v। देखो अब यहाँ से मैंने निकाला d और d को कॉमन लिया, तो यहाँ कितना आ गया 2v और 4v का एलसीएम लिया, तो कितना आ गया 4v, और यहाँ आ गया मेरा 2 प्लस 1, और d से d कैंसिल हो गया, दिस वन, तो मेरा आंसर आ गया 4v/3 एंड दैट इज ऑप्शन सी। ओके, सो ये भी इजी हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, इन 2023 थर्ड क्वेश्चन it was asked, a bullet from a gun is fired on a rectangular block, a wooden block। तो चलो कंसीडर करते हैं एक केस। मैंने बोला एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और चलो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का बुलेट पेनिट्रेट किया, और उसका डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी u है, और इधर मान लो कहीं
इसका वेलोसिटी मेरा कितना हो गया, u/3 जो कि 1 है, ठीक है। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड। तो उसने बोला यहाँ जो वेलोसिटी होगा फाइनल एंड पे, तो वो मेरा v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपने को बताना है तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। चलो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक के लिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो वेलोसिटी इज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो अपने को इक्वेशन ये वाली यूज करना है। बिकॉज टाइम गिवन होता तो और इक्वेशन कर लेते हैं। और यहाँ एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, तो हमको फाइंड आउट करना है ए। तो फर्स्ट देखो v कितना हो गया, u/3, तो u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 को 24 रहने दिया। ये कितना हो गया, u स्क्वायर/9 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 48a, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ से ये हो गया -48a इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u² 9, ठीक है। तो यहाँ मेरा ये कितना आ गया, ये हो गया मेरा 8u² 9, ठीक। तो यहाँ इसको और सॉल्व किया आगे, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा -48a इज इक्वल टू 8u² 9, तो 6 हो गया। और ये कितना आ गया, a इज इक्वल टू -u²/54, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको और मूव करना, तो यहाँ यहाँ इसका एग्जैक्टली जो इनिशियल स्पीड होगा वो होगा u/3, और फाइनल मेरा हो गया 0। तो वंस अगेन सेम इक्वेशन अप्लाई कर दो फॉर द सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया, तो ये कितना होगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as और 2as2। तो देखो v फाइनल तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू u² बोले तो u²/9 हो गया, और प्लस 2, और a एक की जगह पे कितना रख दिया, इक्वेशन 1 से वैल्यू u²/54 इंटू s2, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया 27, इसको इधर ले गए तो कितना हो गया मेरा, और ये यहाँ माइनस में है तो इसको इधर ले गए, कितना आ गया u²/27 इंटू s2 इज इक्वल टू u²/9। तो 9 3 जा दिस वन, और u² कैंसिल 1, तो s2 आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। उसने पूछा टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक लेंथ इज इक्वल टू s1 प्लस s2 बोले तो 24 प्लस 3 दैट मीन्स 27 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो 27 सेंटीमीटर बोले तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 23, तो उसमें पूछा है हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, a student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity of 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface is this. जी इसको 10 मीटर पर सेकंड इसको यूज करना है, ठीक है। मान लो, तो यहाँ मान लो एक बच्चा है, वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉल ऊपर फेंकता है, ठीक है। और जी मेरा कहाँ रहेगा, जी रहेगा नीचे, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो ऊपर का मैंने साइन कन्वेंशन लिया पॉजिटिव, और नीचे का कितना हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मेरा u इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -g, बिकॉज डाउनवर्ड है वो, तो कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपने को फाइंड आउट करना है, टाइम तो यूज करना नहीं है, मेरे को यूज करना है टाइम गिवन, नहीं टाइम गिवन है, सॉरी टाइम गिवन है, तो मैंने अप्लाई किया
S is equal to UT plus half AT square. तो S is equal to UT plus half AT square. देखो S अपने को फाइंड करना, U कितना है 4, तो 4 रखा, टाइम कितना है 4, तो 4 रखा, प्लस हाफ इज हाफ, A कितना है -10, तो -10 रखा, T स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 से ये कैंसिल किया, कितना होगा 2 हो गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया, और ये कितना हो गया मेरा -80 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया -64 मीटर, मीन्स डेप्थ बता रहा है। तो डेप्थ, तो हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया मेरा 64 मीटर। 64 मीटर बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, नीट 2022, 1 सेकेंड, दे आर आस्किंग ग्राफ। तो उन्होंने बोला है पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी फॉर अ पॉजिटिव एक्सलेशन। एक्सलेशन कैसा होना चाहिए, एक्सलेशन होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। और गिवन क्या है उसने, देखो एक्स टी ग्राफ मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो फर्स्ट वाले में पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मीन्स इसका स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट मीन्स वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो, दैट मीन्स रॉन्ग आंसर। सेकंड वाले में क्या है देखो, वेलोसिटी वेलोसिटी इसका स्लोप इंक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो आंसर बी करेक्ट होगा। थर्ड वाले में वेलोसिटी द स्लोप डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और फोर्थ वाले में अगेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज जीरो, सो सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में फिर पूछा उसने, उसने पूछा द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। मेरे को पता है nth सेकंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये मेरा, ठीक है। nth सेकंड का उसने पूछा, तो मेरा nth सेकंड का फॉर्मूला, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें, तो चलो अप्लाई करते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स u इक्वल टू कितना होगा, u इक्वल टू हो गया जीरो, ओके, u इक्वल टू जीरो हो गया, और a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू मेरा हो गया g, ठीक है। तो चलो देखते हैं, s1 मीन फर्स्ट सेकंड में क्या हो गया, ये वाला टर्म हमने यूज करना है इसको जीरो, दैट मीन्स इसको पहले जीरो कर देना है। तो अब देखो ए बोले तो जी बाई टू, और टू एस दैट एन की वैल्यू वन होगी, 2 × 1 -1, तो कितना हो गया, ये वाला मेरा हो गया g/2, ठीक है। ये मेरा g/2 हो गया, तो g/2, तो अब देखो ये फर्स्ट सेकंड का हो गया, तो एस सेकंड, सेकंड बोले तो अगेन यहाँ ए की वैल्यू जी हो गई, और 2 is 2, और एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 - 1, तो 4 - 1 3, तो कितना हो गया 3g/2, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया। अब उसने पूछा मेरे से थर्ड वाला, मीन्स थर्ड सेकंड, तो चलो थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड थर्ड बोले तो g/2 और 3 × 2 - 1, तो कितना हो गया, ये वाला हो गया 5g/2, ये थर्ड सेकंड हो गया। देन आफ्टर उसने पूछा कि मेरे को नेक्स्ट वाला बता दो, नेक्स्ट वाला बता दो मीन्स फोर्थ, फोर्थ सेकंड का कितना होगा, इसी में फिर पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। कितना होगा g/2, 2 × 4 - 1, तो कितना हो गया 7g/2। अब अगर इनका रेशियो निकाला जाए, तो सबका अगर रेशियो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, s फर्स्ट रेशियो s सेकंड, s थर्ड, और s फोर्थ। तो बोले तो देखो g/2 सबका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 1 3 5 7। इस रिजल्ट को याद भी रख लेना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
ये यूज होता है डायरेक्टली 13579। तो यहाँ आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा दिस वन, सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022, ठीक है, उसने पूछा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अच्छा ग्राफ मिसिंग है, तो चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ओके, ठीक है, तो इसमें गिवन है a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t is equal to 0, let Sn be the distance traveled by the block in the time interval t is equal to n minus 1 and t is equal to n, then the ratio of Sn upon Sn plus 1 is, ठीक है, तो स्लाइड्स डाउन t is equal to 0 बोला है, तो मेरे पास सेकंड का फॉर्मूला Sn सेकंड का फॉर्मूला मेरा होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। स्लाइड्स डाउन इनिशियल वेलोसिटी 0 कर लो, बिकॉज उसने बोला है टाइम 0 से और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला मेरा 0 हो गया। चलो अब यहाँ पे लिख लो Sn अपॉन Sn प्लस 1, इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो a is a only स्लाइड्स, ठीक है जी कर सकते हैं, बट स्लाइड्स डाउन क्या होना इस, ठीक है, तो मैंने किया 2 n की वैल्यू n हो गया पहले माइनस 1 अपॉन सेकंड वाले में क्या हो गया a is a only, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 n की वैल्यू नाउ n प्लस 1 बोला उसने, तो n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया 2n माइनस 1, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2n माइनस 1, और ये हो गया 2n प्लस 1, तो 2n minus 1, 2n plus 1, that means answer D. Answer D is the correct for the for this question. तो चलो आगे बढ़ते हैं। NEET 2020, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second, the height of the tower. You have to tell. तो देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हाइट हमको फाइंड आउट करना है, एक्सलेशन जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड, तो वेरी इजी क्वेश्चन, टाइम से मेरे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक इक्वेशन आती है मेरे को, क्या आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज कर लो, डायरेक्ट इसको यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए क्या है, v है मेरा 80 और 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू बोले तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 इज 2, ये बोले तो जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू एस मेरे को फाइंड आउट करना है, तो देखो ये वाला मेरा कितना हो गया 6400, इसको इस वाले को मैं इक्वल के इधर ले जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 20s, तो 20s इज इक्वल टू कितना हो गया 20s इज इक्वल टू मेरा हो गया 6000101, इससे कैंसिल होकर कितना आ गया 300, एस इज इक्वल टू कितना आ गया 300 मीटर, इजी पीजी, ठीक है, 300 मीटर बोले तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसने 2019 में पूछा है द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, चलो इसको ईस्ट वेस्ट और इसको कर लिया मैंने साउथ और इसको कर लिया नॉर्थ, ठीक, तो उसने फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ वन, बंदा कहाँ खड़ा है, बंदा खड़ा है अपना इधर, ठीक है, तो बंदा इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इफ ही स्टैंडिंग ऑन साउथ वन एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given, ठीक है, तो देखो ऐसे रिवर कैसे फ्लो हो रहा है, रिवर हो रहा है ऐसे फ्लो, रिवर हो रहा है ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो बंदे को कैसे क्रॉस करना है, बंदा यहाँ खड़ा है ए पे और उसको क्रॉस करना है बी पे, शॉर्टेस्ट पाथ में उसको इसमें पहुंचना ए टू बी डायरेक्ट, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इधर वो मूव करेगा तो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा, अगर वो इधर मूव करेगा तो बिकॉज ऑफ फ्लो वो ए टू बी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वो उसको इधर कहीं करना होगा स्ट्रोक, इधर स्ट्रोक करना होगा, ठीक है।
अब देखो ये वाला वेलोसिटी कितना गिवन है, ये वाला है मेरा v ऑफ रिवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसने बोला कि स्विमर का स्पीड कितना हो सकता है, स्विमर का हो सकता है मेरा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो सकता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, सो डायरेक्टली एंगल निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम, दैट मीन्स 10 अपॉन 20 कितना आ गया 1/2, 1/2 बोले तो 10 30, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ड्यू वेस्ट हो, बिकॉज इफ ही विल मेक दिस साइड स्ट्रोक तो क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो आंसर इज डी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2017 उसने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन था, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. चलो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये एस्केलेटर हो गया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। तो पहले दिन उसको टाइम कितना लगा t1। तो मान लो कि इसका डिस्टेंस मान लो कि डिस्टेंस डी है, ठीक है। इसका यहाँ से ए टू बी डिस्टेंस डी है। पहले दिन उसको टाइम लगा t1, तो मान लेते हैं कि एस्केलेटर की वेलोसिटी होगी और स्पीड होगी v1, ठीक। चलो अब नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे उसने जब जब प्रीति यहाँ से ए टू बी जा रही है, तो ए टू बी प्रीति प्रीति ने क्या किया, अच्छा पहले टाइम में क्या था, एस्केलेटर और स्टेशनरी, तो प्रीति का स्पीड है v1 और टाइम t1 लगा। नेक्स्ट केस में प्रीति स्टेशनरी है और एस्केलेटर के स्पीड मान लो v2 मान लो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब थर्ड उसने पूछा द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, तो वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर उसमें देखते हैं तो क्या होता है कि ना दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो अपने को क्या निकालना टाइम, ठीक है। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है बेसिक से, क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको लिखा, तुम्हारा v1 कितना आ गया, v1 बोले तो d अपॉन t1, ठीक है। और v2 कितना आ गया, d अपॉन t2। और मेरा मेरे को निकालना क्या है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम बोले तो मेरा स्पीड, नेट स्पीड इज इक्वल टू नेट डिस्टेंस अपॉन नेट टाइम, ठीक है। तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा इस केस में, मेरा हो जाएगा v1 प्लस v2। और नेट डिस्टेंस क्या है, नेट डिस्टेंस तो d रहेगा, तो टाइम बोल दो चलो t हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ इसको मैं इधर लिखता हूँ, चलो ठीक है। तो इधर लिखा v1 कितना हो गया d बाई t1 प्लस d बाई t2 इज इक्वल टू d को t रखा, d t t, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ इसका एलसीएम दिया तो कितना आ गया t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू मेरा हो गया कितना t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। और ये मेरा दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2016 में उसने पूछा टू कार पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट at the same time in a straight line and their positions are represented by this, at what time do the car have the same velocity, same velocity पूछा। देखो पोजीशन ग्राफ के पोजीशन टाइम फंक्शन गिवन और पोजीशन टाइम फंक्शन गिवन, उसने बात वेलोसिटी की करी है तो हमको सिंपल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करते हैं डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट वाले का वेलोसिटी हो गया p और वीपी बोले तो डी एक्स पी अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया ए टी का डिफरेंस 1 प्लस पी इज बी और टी इसका डिफरेंस 2t, ठीक है। तो ये मेरा हो गया a प्लस 2bt इक्वेशन 1,
ठीक है, अब सेकंड वाला उसने वी क्यू को करो तो डी एक्स क्यू अपॉन डी टी, इसको निकाला तो कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंस क्या है देखो, टी का डिफरेंस 1, एफ इज एफ ओनली, माइनस टी इसको डिफरेंस है 2t, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। उसने बोला है कि एट व्हाट टाइम दे शुड हैव सेम वेलोसिटी दोनों इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, vp इज इक्वल टू vq, उसने गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैंने लिखा a प्लस 2b t इज इक्वल टू एफ माइनस 2t। अब देखो टी वाले को इधर ले जाओ, बाकी वाले को ए वाले को इधर ले जाओ, तो कितना, इसमें से 2b t प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो यहाँ टी इससे कॉमन लिया तो कितना आ गया, एक इसमें से 2 भी कॉमन ले लो तो ये कितना आ गया, ये हो गया मेरा 1 प्लस बी, और ये कितना एफ माइनस ए। तो देखो टी इक्वल टू कितना आ गया, टी इक्वल टू मेरा हो गया एफ माइनस ए अपॉन 2 ऑफ 1 प्लस बी। देखो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, चेक करो, चेक किया तो एफ माइनस ए 2 1 प्लस बी, ये मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये 2016 का ही है, हाँ 2016 का ही है, सेकंड क्वेश्चन। तो मैंने बोला उसमें गिवन है अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन। एक्चुअली ये ऑसिलेशंस का क्वेश्चन हो जाता है एसएचएम वाला, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इज गिवन v इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन by r is equal to cos omega t x plus sin omega t y, where omega is a constant, which of the following is true। उसने पूछा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा, तो पहले वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। पार्टिकल मूव सो दैट इसका अपने को क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसने उसको पूछा है, तो डिफरेंशिएट कर लो, उसको डिफरेंशिएट किया तो देखो वेलोसिटी मेरा हो गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट किया तो देखो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएट करना है तो ओमेगा इधर आ जाएगा, और एक्स इज एक्स ओनली प्लस इसका डिफरेंस साइन ओमेगा टी बोले तो कॉस ओमेगा टी, और वाई इज वाई ओनली, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ठीक है ये हो गया, ठीक। इसको लिखा, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। यहाँ से अगर मैं एक्सलेशन निकालना है तो एक्सलेशन के लिए मेरे क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, तो dv अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट किया साइन वाले को, तो इस साइन का कॉस होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज एक और ओमेगा बाहर आएगा, और कॉस ओमेगा टी आई कैप, और अब इसका क्या हो जाएगा, कॉस वाले का माइनस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी जे कैप। तो बोले तो यहाँ कितना लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर से आर आ जाएगा इधर, तो ये हो गया ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ एस एच एम, दैट मीन्स एक्सलेशन इज टुवर्ड्स ऑरिजिन, ठीक है, टुवर्ड्स ऑरिजिन। और देखो यहाँ से अगर मैं इसका v और a दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करो तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स होगा, इसमें से ऑप्शन चेक करते हैं, तो फर्स्ट वन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, v एंड a आर परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट वाला उसने बोला कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नहीं टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, कि वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r, नहीं, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी इज एक्सलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, नहीं। तो अब फोर्थ बोला वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, देखो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ 2016, उसने बोला है if the velocity of a particle v is equal to a t plus vt square where a and b are constant, then the distance traveled by it
बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। चलो डिस्टेंस बोला है तो एक हमने देखा है कि अगर वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है, डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, हमको करना होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अपना ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन चलो कर देते हैं। इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बोले तो वी डी टी, और लिमिट्स गिवन है कहाँ से कहाँ तक, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। पुट कर दो वैल्यू, तो 1 to 2, और यहाँ पर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर और डी टी। इंटीग्रेट किया तो कितना हो जाएगा, ए इज ओनली टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, बी इज बी ओनली टी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स जाएंगे 1 to 2। पुट कर लो इसमें वैल्यू, ए इज ए ओनली और बाई 2 इज 2 ओनली, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 - 1, और यहाँ बी इज बी, 3 इज 3, और अपर लिमिट का क्यूब मीन्स 8, और लोअर लिमिट बोले तो 1। तो ये आंसर कितना आ गया, ये हो गया मेरा 3a/2 प्लस 8 - 1 7, सो 7b/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इन नीट 2015 एक क्वेश्चन पूछा गया, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी varies according to v of x, beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by this one. ठीक है, ये 2015 में कैंसिल हो गया था पेपर, उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसने बोला वी एक्स, और उसने पूछा है अपने से एक्सलेशन पूछा है, एक्सलेशन निकाल दो भाई। ठीक है, एक्सलेशन निकालने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला याद है कि वी इज डी वी अपॉन डी टी। बट प्रॉब्लम ये है कि उसने फंक्शन गिवन है एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया dx से और डिवाइड किया dx से। अब देखो इसको, अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे ले लिया dx बाई डी टी, तो इसको ऐसे लिखा मैंने dx बाई डी टी इंटू रिमेनिंग डी वी अपॉन डी एक्स, और dx बाई डी टी मेरा होता है v, तो इसको लिखा v डी वी अपॉन डी एक्स। ऐसे ही घुमाता है बस वो। अब देखो इसको मैंने बस वैल्यूज पुट कर लो, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, वी बोले तो बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n इंटू डी वी डी ऑफ डी एक्स किसका, बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। यहाँ देखो आप बीटा, इसमें से बीटा बीटा बाहर निकल लो, कांस्टेंट है, तो ये कितना होगा बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 2n इज एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट किया इस वाले को एक्स टू द पावर माइनस 2n। एक्स टू द पावर माइनस 2n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है, एक्स टू द पावर माइनस 2n कितना हो जाएगा, -2n एक्स टू द पावर -2n -1, एक्स टू द पावर -2n -1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको मैंने लिखा, पूरे सॉल्व करके लिखता हूँ, बीटा स्क्वायर एक्स टू द -2n और एक्स टू द पावर -2n, तो कितना हो गया, और इनटू पहले -2n इधर लिख लो। ठीक है, और एक्स टू द -2n बोले तो इनको पूरी पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर को लिखा -4n -1। आंसर मेरा हो गया -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर -4n-1। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन अपना मैच कर रहा है कौन सा, अपना ऑप्शन मैच कर रहा है सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आज के लिए इतना काफी है, 10 years के हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। We'll see you in the next class. Daily, most probably daily, we are going to discuss PYQ of NEET. Okay, thanks.